کے ذریعے سے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہمیں اگر اس کو مزید آگے بڑھانا ہے یا کوئی احتجاج کرنا ہے، جس طرح سے بھی ہم سب لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اس وقت پوری قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یاسین ملک صاحب کے لیے اٹھیں، باہر نکلیں، اور جو یاسین ملک صاحب جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے سارے لوگ نکلیں. یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے. تو میں شکر گزار ہوں سب احباب کا جو آپ یہاں پہ آئے ہیں اور جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی، اور ہمارے قائدین جو آج بھوک ہڑتال ختم کر رہے ہیں. ہم اس کو عارضی طور پہ آگے ہم اس کو کیا لائے عمل مرتب کریں گے، یہ ہمارا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو آگے لائے عمل کو عوام تک بتائیں گے. تو سب احباب کا شکریہ جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہمارے آج اس کے آخری پروگرام میں، یہاں پہ بھوک ہڑتال ختم کرنے میں. ہمارے لائن بہت بہت شکریہ. کچھ بات کر لیں آج کے اس موقع کی مناسبت سے، تاکہ ایک پیغام بھی ہم یہاں سے دے سکیں. پہ جاتے ہیں اور اس وقت وہ ہندوستان کے تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ جو پچھلے بھی کیسز کے اندر ہوا ہے، جو 25 کو ان کے خلاف فیصلہ آیا جس میں نہ ان کی کوئی ایڈمیشن تھی نہ کوئی سبمیشن تھی، اور ان کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہی بلیڈڈ گلٹی. اور اس کے بعد اب پرانے 35 ایئرز اولڈ، پرانے ڈیکیڈ اولڈ جو فیک کیسز ہیں یاسین صاحب کے خلاف، وہ کھول دیے گئے ہیں، ٹاڈا کے کیسز. اور یہ جتنے بھی کیسز یاسین صاحب پہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مین ٹارگٹ اس وقت یاسین صاحب ہیں. ہندوستان کی اسٹیٹ، ان کی اسٹیٹ مشینری، ان کی حکومت، ان کی انٹیلیجنس، کیونکہ وہ ان کی ول کو توڑ نہیں سک رہے ہیں اور قید تنہائی میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور اوپن ٹوائلٹ ہے ان کے اوپر. 2 سال پہلے کی بھی بات آئی تھی کہ NIA کی انٹروگیشن میں ان کو فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا تھا، مینٹل ٹارچر بھی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مگر ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو وہ توڑ نہیں سکے. اور اس وقت ان کی ایک بیسک ڈیمانڈ ہے، کوئی بھی دنیا کی کوئی جتنی بھی خوفناک اسٹیٹ ہو، دہشت گردی کر رہی ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہی ہو، مگر اس کی بھی لوازمات ہوتے ہیں، کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، آپ کو پیش کیا جاتا ہے فزیکلی، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ ڈیفینس میں اپنے کیا بولتے ہیں، یا آپ کا کوئی وکیل ہوتا ہے یا آپ کو خود فزیکلی پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اور جو کیس ہے جس کے اندر انہوں نے ڈیمانڈ کیا ٹاڈا کے کیس کے اندر کہ ان کو فزیکلی پریزنٹ کیا جائے کراس ایگزامینیشن کے لیے. اینڈ ہی از ناٹ جسٹ دا پائنیئر جو آرم اسٹرگل کے تھے، بلکہ یہ پائنیئر ہیں پیسفل ریزسٹنس موومنٹ کے بھی مقبوضہ کشمیر میں. کیونکہ اس زمانے میں جو ان کی ویل آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں، غالباً 20,000 آرم اسٹرگل میں لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ 1994 کے اندر جو انہوں نے پرامن تحریک پر آئے، اس کے اندر امریکن گورنمنٹ انوالو ہے، اس میں برٹش گورنمنٹ انوالو ہے، اس میں ہندوستان کی اسٹیٹ نے ان کو کتنی دفعہ، کلدیپ نیر اور بھی بڑے لوگوں کے نام ہے اس ویل کے اندر، کہ ان کو ود ان جیل انکارسریشن، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پیسفل پرامن پاتھ، سیاسی جو پاتھ ہے اس کو اپلائی کریں گے تو پھر ہم آپ کا یہ جو مسئلہ ہے کشمیریوں کا پرامن طریقے سے آپ لوگوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے گا. گارنٹرز سے اس کے اندر اس وقت یہ المیہ ہے کہ دنیا بالکل ہی سو گئی ہے. ایک وہ آدمی جو اس وقت ایک آئیکن ہے، نہ صرف ریزسٹنس کا بلکہ پرامن تحریک کا، حق خود ارادیت کا، آزادی کا، اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس وقت آرم اسٹرگل کو نہ چھوڑتے تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ آرم اسٹرگل میں ہوتے. اس وقت ہمارے پاس آئی تھنک 50 لوگ ہوں گے آرم اسٹرگل کے اندر. وہ بھی رائٹ ہے کشمیریوں کا کہ وہ آرمز اٹھائیں، مگر انہوں نے نارمز کو اس وقت ان کو اون کیا کہ ہاں میں ایک اپنا جو پاتھ ہے پرامن جو ہے میں اس کو اب لیڈ کروں گا. اور ابھی تک وہ اس کے لیے اس وقت بھوک ہڑتال ٹل ڈیتھ وہ جا رہے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی جان جو چلی گئی، اس طرح وہ شہید ہو گئے، انکارسریشن جو ان کا جوڈیشل ٹیررزم اور جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری قوم جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، نہ ان کے پاس ویپنز ہیں، نہ ان کو پولیٹیکل سٹرگل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جو چیمپئن ہے وہاں پہ، جو فیس ہے کشمیر کی پرامن تحریک کا، اس کو ایلیمینیٹ اس طرح کیا جا رہا ہے، دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور ان کو قید تنہائی میں رکھا جی، تو لوگ وہاں پہ سوسائڈ بمبرز بنیں گے. وہاں پہ وہ خون ریزی ہوگی، وہ ایکسپلوژنز ہوں گی لوگوں کے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ویپن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس.
ان کو اسپیس ہی نہیں دی جا رہی, اور ان کی لیڈرشپ جب ایلیمنیٹ ہوتی ہے تو آپ بھول جائیں کہ پورے خطے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی امن کا خواب بھی کوئی نہیں سوچ سکے گا. تو یہ میں اس وقت اپیل کر رہی ہوں یونائٹڈ نیشنز کو, پرماننٹ 5 کنٹریز کو جو انٹرنیشنل گارنٹرز تھے, کہ پرامن تحریک کو آن کیا جائے گا اور کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی. آج وہ جو نہیں دیکھ رہے, اتنا بڑا یہاں پہ لاوا پھٹنے والا ہے جو کہ وہ ود ان مومنٹس ہو سکتا ہے اگر یاسین صاحب کی جان چلی گئی. انگلش میں بھی آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک to the press, to the world at large, that my husband Mohammad Yasin Malik has gone on a fast onto death, and his only crime is that he is the peaceful resistance voice of the right to self-determination, of the right to freedom, which is a birthright of every human being. He has written a will which has been made public, in which he has said how India has backstabbed the Kashmiris, how India has taken all the fundamental rights of Kashmiri people, and he has been slapped with draconian laws like TADA, Public Safety Act, and like UPA. And I want to tell the world that these are colonial laws, British colonial laws, which stand invalid. Right now, all these detention laws which India is applying on Kashmiri people and on Yasin Malik, they are invalid on what grounds? And Yasin is not an Indian. Even then he is respecting the Indian Penal Code, and he is saying that I must be given the right. He is not boycotted. He is still demanding that he should be presented physically. And India claims that he has pleaded guilty. On what grounds? What videographic evidence do they have? Was he presented physically? He was only presented physically when the decision was made. And right now he is languishing all alone in solitary confinement. My husband, his life is at risk. He has been tortured over the past 35-40 years. That man right now is still believing in the principle of non-violence. And this is what India is doing. India is the biggest terrorist. If he eliminates Yasin Malik, then this is going to be the worst thing that can ever happen to peace and tranquility. I appeal to the world that we should wake up, shake your conscience, and rise up and speak up for the Kashmiri people. And if the leadership is eliminated, this will never. Peace is something which will be impossible. And peace can only happen if there is freedom for the Kashmiri people. And today, Salim Haroon Saab and Raja Saab are on a 3-day hunger strike, along with the people of JKLF, civil society, APHC senior leaders, Safi Saab, Mateen Saab, Irshad Saab, and a lot of other, Hamid Lone Saab. All are here. These are all Kashmiri people. Our daughter, she's 10 years old. She's also on a hunger strike for 1 day. We are all appealing. I've not seen my husband for the past 8.5 years, nor have we given the right to even talk to him as a wife and as a daughter. My mother-in-law met him 3 days back. He was in a glass room. He was very weak. She could not even hold his hand. And it was a very brief meeting in which he said, Mom, I have left the case to Allah Almighty, because this world is not providing justice to Kashmiris. We are creatures of a lesser God for the world. The world is completely ignoring, but it will be the loss of the world. I know we already have three nuclear countries at loggerheads when it comes to the Kashmir issue. And when the Kashmiri people will explode, that will be the worst thing ever. And there will be no return to it. So still we have time. Time is running short. We are literally on a nuclear ticking time bomb. And the only way we can save the peace of the entire region is to save the leadership, especially Yasin Sahab, to get him out of there and to be hospitalized and vacate that place, demilitarize it. Thank you. We want freedom. We want freedom. Terrorist, terrorist. Moody terrorist. Terrorist, terrorist. Moody terrorist. بہت بہت شکریہ. جس طرح بابی صاحبہ نے بھی بات کی, ہماری ہمشیرہ ہے یاسین صاحب کی اہلیہ, بلکہ یاسین صاحب نے اپنے بل کے اندر ان تمام جو ہندوستانی لاز ہے ان کو ریفر کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے قانون کے تحت بھی کتنا یہ انجسٹس ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو ساگر صاحب سے پہلے میں گزارش کروں گا ارشاد محمود صاحب سے, وہ بھی اختصار کے ساتھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خواتین حضرات میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں سلیم ہارون صاحب اور حق نواز صاحب کو حوالہ
हक नवाज साहब को कि उन्होंने यासीन साहब से सॉलिडरिटी के लिए इस दिन 3 दिन से हड़ताल की है, और यासीन मलिक साहब जैसे मिसाल मलिक साहबा ने कहा है कि वो खुद भी हड़ताल के ऊपर हैं, और ये बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि हम में से जो लोग यासीन मलिक साहब को जानते हैं उन्हें इल्म है कि वो इस तरह की जब भी हड़ताल पे गए वो आखिरी हद तक गए हैं, और ये वक्त है कि दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर ये दबाव डाले। वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, फेयर ट्रायल मांग रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो मेरा ट्रायल हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मुझे इन पर्सन जो है पेश होने दिया जाए ताकि मैं इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकूँ और अपने केस में अपना नुक्ता नज़र को या मौक़िफ़ को वाज़ेह कर सकूँ। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बहुत वो ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि जो कोई अनजस्टिफाई हो या बहुत बड़ा मुतालबा। ये हर इंसान का बुनियादी हक़ है, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक भी है, दुनिया के हर कानून के मुताबिक भी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को मुझे देखा मैंने कि एक बयान आया भी है गवर्नमेंट की तरफ से, और भी जो दुनिया के जितने जो हमारे सिंपैथाइज़र हैं वो भी हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालें कि इस मौके पे यासीन मलिक साहब को बचाने के लिए हिंदुस्तान इस मुतालबे को माने और उन्हें उनके ट्रायल को जो है, हिंदुस्तान जिस रास्ते पे गामज़न है उसका सारा एक ही मकसद है कि कश्मीर को जो है उसने पूरा एक इंटीग्रेट करना है, लीडरशिप को ख़त्म करना है। तो यासीन मलिक साहब का केस जो है एक टेस्ट केस भी है हम सब के लिए, अगर वो नहीं बचेंगे तो फिर शायद कोई और भी नहीं बचेगा, इसलिए और ज़्यादा हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी। मैं गुजारिश करना चाहूँगा महमूद अहमद सागर साहब, कन्वीनर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसके बाद रहमान रहीम। सबसे पहले मैं सलीम हारून साहब और हक नवाज साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और ये पहले भी इस बात को करते रहे हैं। मेरी एक दो गुजारिशात मीडिया के हवाले से मकबूजा जम्मू कश्मीर के मीडिया के लिए है। यासीन साहब की वालदा मोहतरमा और हमशरा साहिबा को यासीन साहब ने तिहाड़ जेल बुलाया मुलाकात के लिए, और वो मुलाकात के लिए गई, मुख्तसर वहाँ मुलाकात हुई जैसे मशाल मलिक साहिबा ने यहाँ पे कहा। मुलाकात के बाद जब वो श्रीनगर वापस तशरीफ़ लाई, उन्होंने पूरे कश्मीर जो वादी में श्रीनगर में प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन सब को बुलाने की कोशिश की। पहले उसको नाकाम कर दिया गया, आपको पता है वहाँ के हालात क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग आए बाद में जिनके साथ उस बहन ने और उस हमारी माँ ने बात की और सूरत हाल उनके सामने रखी कि यासीन साहब की पोजीशन क्या है और यासीन साहब क्या चाहते हैं। उसको रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसके बाद उसको कहीं नहीं चलाया गया। मजबूरन उस माँ और बेटी को खुद सोशल मीडिया पे आना पड़ा और उन्होंने कौम से बात की, अपने लीडर का पैगाम पहुंचाया। मेरी आपसे दरख्वास्त ये वो मीडिया मकबूजा जम्मू कश्मीर का है, इसमें हमने ऐसे अखबार देखे हैं, ऐसा मीडिया देखा है जिसको इस तहरीक की वजह से बूस्ट मिला, जिनको इस तहरीक की वजह से दुनिया में पहचान मिली। वो अखबार आज अगर दुनिया में कोई पढ़ता है, उसकी वजह पिछले 30 साल की तहरीक है, कश्मीरियों की शहादतें हैं, यासीन मलिक साहब की कुर्बानियाँ हैं, उसकी वजह से वो अखबार, वो मीडिया दुनिया तक छा गया। लेकिन अफसोस की बात है उस मीडिया ने कल उस लीडर की, उस मजलूम की बात अपने आवाम के सामने नहीं रखी। हम चाहते हैं कि ये मीडिया जो यहाँ पे हमारा मीडिया है, जो हमारी आवाज़ है, इसको दुनिया तक पहुँचाए। जैसे यहाँ पर मशाल मलिक साहिबा ने कहा, देखिए ज़रूर हम शुक्रिया उन लोगों का, उन मुल्कों का, उन NGOs का करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे हक में आवाज़ उठाई, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान टस से मस नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के ख़त का कोई अहमियत नहीं है जब तक कोई अमली इक़दाम न किए जाएं। वो ये बिल्कुल अपने इरशाद महमूद साहब ने सही बात कही है, ये टेस्ट केस है। अगर आज यासीन साहब इसके शिकार हुए, कल ये लाइन चली, कल शबीर अहमद शाह भी जाएगा, मसर आलम बट भी जाएगा, आसिया इंद्राबी भी जाएगी, सब लोग जाएंगे। आपका वहाँ पे कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम क्यों इंतजार करते हैं कि यासीन साहब वहाँ से कोई इनिशिएटिव लेगा तो फिर हम उसके पीछे चलेंगे? हमारा इनिशिएटिव अपना, हमें पता वो बेचारे कैद में हैं, तिहाड़ जेल की सेलों में पड़े हुए हैं। आज उन्होंने परसों भूख हड़ताल कहा, हमने भी भूख हड़ताल कर दिया। हम स्टेप पहले ले लें, हम इनिशिएटिव ले लें, हम दुनिया को बताएं कि क्या हो रहा है कश्मीरियों के साथ, और दुनिया सुनेगी आपकी अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे।
मैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, वो होश के नाखून ले। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हमारी वजह से है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 1948 में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बनाई गई थी। उनका रोल क्या है? वो है कहाँ पे? क्या वो इंतजार करते हैं कि मरे कश्मीरी? वो सामने आए और अपना किरदार अदा करें। अगर वो किरदार अदा नहीं करेंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। वो अपनी हैसियत नहीं बहाल रख सकते हैं हमारे बगैर। वो अपने होश के नाखून ले और सामने आ जाएं। आज यासीन मलिक के हवाले से यहाँ आज़ाद कश्मीर का खुद वजीर होना चाहिए था। उनको पता नहीं है कि यहाँ भूख हड़ताल कैंप लगा हुआ है। यहाँ 3 दिन से 2 चेयरमैन कायम मुकाम और वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी ये कहना चाहता हूँ, फॉरेन ऑफिस अपना रोल कंक्रीट बुनियादों पे अदा करे। सिर्फ बुला के एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। कुछ अहम इकदाम करें, कुछ दुनिया के अहम मुल्कों को कॉल करके, उनके सफारत खानों को, उनके सफीरों को बुला के हालात से आगाही करें, ताकि ये मसला दुनिया के सामने आ जाए। आखिर कश्मीरी क्यों भरोसा नहीं करता है हिंदुस्तान की अदालतों पे? हमने देखा है कि हिंदुस्तान की अदालतों ने अफजल गुरु को कौम को सेटिस्फाई करने के लिए फांसी पे चढ़ा दिया। इस लिहाज से हमें ये जिम्मेदारी, हुकूमत पाकिस्तान इस मसले का फरीक है, वो एज ए स्टेट अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे केस को लेके वहाँ इस केस को लड़ता है। उसको चाहिए कि वो अपना ऐसा किरदार अदा करें जिससे हम दुनिया के सामने अपने केस को ओपन कर सकें। मैं चाहूँगा कि पहले 2-3 जुमले बेटी रज़िया यासीन मलिक को रिहा करो, रिहा करो, यासीन मलिक को रिहा करो। पापा प्लीज छोड़ दें भूख हड़ताल को, ताकि मैं और मामा भी छोड़ सकें। प्लीज पापा छोड़ दें, मेरी खातिर छोड़ दें। मैं भी भूख हड़ताल पे हूँ आज। थैंक यू। आप जूस बेटा अंकल को पिलाओ ना। होल्ड ए सेकंड। दूसरा इधर आ जाए, सलीम अंकल को भी, सलीम वहाँ अंकल जाओ, को भी आप वहाँ जाओ, उस साइड से आ जाओ सर, वहाँ बैठ जाओ अंकल। इस तरफ आ जाए। उधर जाओ, अंकल को पिलाओ। ये उस साइड ठीक है। इधर फेस में इधर करो बेटा। ये अंकल 3 दिन से नहीं कुछ खाया उन्होंने। इधर मुंह करो ना। ये ले लो। थोड़ा पीछे जाओ। पिलाओ बेटा। खुद पिलाओ ना रज़िया। काफी इनका लो हुआ। खजूर भी दो कम ऑन बेटे। रज़िया, बेटा खजूर भी दे दो। खजूर भी दो अंकल को। अंकल खजूर कर दो। दबा के करो, दबा के कर। ऐसे जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा 2-3 मिनट के राजा नवाज साहब का मकाम चेयरमैन, इनको थोड़ा मोड़ जूस और दे दें पहले इनको। सबको इधर पीछे से भी मीडिया वाले। बस इमरान आप इधर आ जाए। नवाज साहब ये जनाब खजूर ले लें सबको इधर से। बस मैं ये लूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। मैं तमाम तहरीक आज़ादी के साथियों का, दोस्तों का, एमी जी का, अपनी भाभी मशाल साहबा का, बहन का मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप यहाँ पर हमारी इस भूख हड़ताल कैंप में तशरीफ़ लाए। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा, वो बात ये है कि कौमों को आज़ादी कमरों में बैठ के नहीं मिलती है। इसके लिए लड़ना पड़ता है मैदानों में और मरना पड़ता है।
यासीन मलिक मैदान में होता है तो मंजर आम पे होते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, अफजल गुरु को फांसी लगती है तो यासीन मलिक यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में तहरीक जिंदा करते हैं। वो इस वक्त जेल में बैठे हैं, फिर भी यासीन मलिक ने अपने अज़म से, अपनी बहादुरी से, अपनी जुर्रत से, अपने हौसले से ये तहरीक अंदर भी और बाहर भी जिंदा रखी हुई है। यासीन साहब का वो पैगाम जब वो श्रीनगर के जेल में थे, जब एसएसपी उसको रात को उठाने आया 3 बजे रात को, कहा यासीन साहब आपने जम्मू की तरफ रवाना होना है। यासीन साहब ने कहा आप ये पैगाम मुझे कल रात को भी दे सकते थे ताकि मैं अपनी अम्मी और बहन से मुलाकात कर सकता था, कपड़े वहां से ला सकता था। तो उन्होंने कहा यासीन साहब हम अम्मी को भी ला चुके हैं और बहन को भी लाए हैं हम, और कपड़े भी लाए हैं हमने। तो यासीन साहब को वहां पर पता चला कि अब बात वो नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि वो अखज़ करने में माहिर इंसान है। और जब यासीन साहब बाहर आए तो उन्होंने अपनी बहन को ये पैगाम दिया, कहा कि शायद ही अब इस बार मैं वापस आ जाऊं, मगर मेरे दोस्तों और मेरे तहरीक साथियों से ये कहना कि ये तहरीक आज़ादी की सुबह तक जारी व सारी रहनी चाहिए। और इंशाअल्लाह यासीन मलिक का रास्ता है हमारा रास्ता, यासीन मलिक का रास्ता है हमारा रास्ता, शोहदा का रास्ता है हमारा रास्ता, श्रीनगर का रास्ता है हमारा रास्ता। We want freedom, we want freedom, we want freedom, we want freedom. Terrorist, terrorist, Indian terrorist, 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 Indian terrorist, 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 Indian terrorist. यासीन तेरी जुर्रत को सलाम हो, सलाम हो। यासीन तेरी अजमत को सलाम हो, सलाम हो। यासीन तेरी शुजाअत को सलाम हो, सलाम हो। यासीन मलिक का एक इशारा, यासीन मलिक का एक इशारा, यासीन के वारिस जिंदा है, यासीन के वारिस जिंदा है, कश्मीर के वारिस जिंदा है, शोहदा के वारिस जिंदा है, श्रीनगर में देखो जिंदा है, जफराबाद में देखो जिंदा है, यासीन के वारिस जिंदा है, यासीन के वारिस जिंदा है। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि इस मसले को कश्मीरी अपना मसला बनाए। ये कश्मीरियों का मसला है, न ये मसला हिंदुस्तान का है, न ये मसला पाकिस्तान का है। ये तब है, इस कश्मीरी को आज़ादी तब मिल सकती है जब ये कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ेगा और दुनिया को बावर कराएगा कि ये कोई मजहबी मसला नहीं है, न कोई बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट है। अगर ये मसला है तो ये एक जिंदा जावेद कौम का मसला है जो आर पार दोनों को 2 लख्त किया हुआ है। जो ये सीज फायर को आज कोशिश हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की, ये तार जो लगी है ये लग रही है कि ये जमीन के ऊपर है, मगर असल में ये हमारे सीनों के ऊपर खींची गई है। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर पे बट को वारा वो कश्मीर हमारा है। जीवे काशर मेरी जान, जम्मू गिलगित बल्तिस्तान, जीवे काशर मेरी जान, जम्मू गिलगित बल्तिस्तान। We want freedom, we want freedom, we want freedom. आखिर में मैं यही कहूँगा अक़वाम मुत्तहिदा को, जो मसले कश्मीर के फरीक है वो अपनी आंखें खोले और ये मुजरमाना खामोशी तोड़े। और यासीन मलिक से बढ़ के लीडर अब हम कोई ला नहीं सकते हैं, इस कौम में पैदा नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं, हम ये दुआ करते हैं, हमारे दिलों में, हर एक के दिल में ये दुआ है कि मसला कश्मीर का फैसला अगर गिलानी साहब की मौजूदगी में न हुआ, अगर शहीद मकबूल भट्ट की मौजूदगी में न हुआ, मगर यासीन मलिक और जितने भी जेलों में सारे हमारे साथी जिंदा है, उनकी मौजूदगी में यह मसला कश्मीर हल हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।